Okay. First of all, I would like to thank the whole organizing team and principal of Government Tip College, Patna, for inviting me here, Professor Tauheed sir. Uh, I also welcome all the young budding research scholars and postgraduate students for joining this session. The topic of my presentation is how to frame research question and null hypothesis. Okay. Uh, First of all, before moving towards the topic, first of all, what is research? Can anyone answer? What is research? Okay. So research is a scientific, systemic and organized investigation to find answers to the questions. So the first step of any research is formulation of the research question. As you all know that there is a life cycle of every research. Any research start with some there with some there is when there is a knowledge gap or when there is some uncertainty. So the first step of any research is formulation of the research question. So the life cycle of the research is first step is formulation of the research question or knowledge gap or unmet clinical needs. Then these research questions are translated into objectives. Then finally, after the objective, that there is proper research is conducted by with the help of data collection is started, like we are formulating the case record form as you will do in your thesis or your dissertation, that you will form some case record forms for data collection. And finally this data is analyzed and conclusion will be drawn from this data, and this conclusion will be reported to all the stakeholders which are involved with this research. So this is the life cycle of the whole research. Now, first question is what is the research question? So research question is nothing but it is an uncertainty in any particular field. For example, if we are considering किसी भी आप किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी होती है या कोई डाउट होता है या नॉलेज गैप होता है, तो उसको हम रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद इसमें बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है. इट मे बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन और इट मे बी ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसमें हमको जो है कोई अंडरलाइंग हाइपोथेसिस नहीं होती. वी हैव टू डिस्क्राइब इट. Like, for example of descriptive research question is if we want to know the prevalence of hypertension in our society or prevalence of hepatitis B in India. So this is a type of the descriptive research question. और दूसरा analytical research question का मतलब ये हुआ कि हमको एनालाइज करना है, वहां पर कोई कंपेरेटर ग्रुप होगा, वहां पर कोई हम अंडरलाइन हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे. तो जो एनालिटिकल रिसर्च क्वेश्चन होता है वहां पर एक अंडरलाइन हाइपोथेसिस होती है जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई अंडरलाइन हाइपोथेसिस नहीं होती. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन? तो स्टेप्स, हमें कोई भी रिसर्च क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे. आजकल आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लिटरेचर हैं, लाइक पबमेड है जो कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है मेडिकल रिसर्च का. तो हम उस पर लिटरेचर सर्च करेंगे. तो लिटरेचर सर्च इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन. उसके बाद हम कोई क्वेश्चन रेज करेंगे. सेकेंड, थर्ड स्टेप हमारा ये हुआ कि उसके बाद हम पीयर, जो हमारा पीयर ग्रुप है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसपे हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें हमारा एक्सपोजर क्या है और आउटकम क्या है. एक्सपोजर एंड आउटकम ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च के. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे और रिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन बन गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया होते हैं रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फाइनल क्राइटेरिया. FINER, फाइनल क्राइटेरिया. फाइनल क्राइटेरिया में F का मतलब क्या हुआ, फीजिबल.
एफ स्टैंड फॉर फिजिबल, हमारा रिसर्च क्वेश्चन फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब यह है कि हमारे पास कितनी मैन पावर है, हमारे पास कितनी मनी है, हमारे पास कितना टाइम है। तो रिसर्च क्वेश्चन कोई भी होना चाहिए फिजिबल होना चाहिए, बेस्ड ऑन आवर मैन पावर, टाइम एंड मनी। I stand for interesting. It should be interesting to the researchers and it should be interesting to the sponsors of research. Then N is novel. हमारा जो रिसर्च होना चाहिए वो नोवेल, कुछ नोवेलिटी होना चाहिए। तो नोवेलिटी कैसे पता चलेगी? अगर ऑलरेडी हमारा काम रिसर्च वर्क हो चुका है तो उसको डुप्लीकेट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ आवर रिसोर्सेज। सो देयर शुड बी सम नोवेलिटी इन द रिसर्च। देन ई स्टैंड फॉर एथिकल। एथिकल का मतलब होता है कि कोई वी शुड ओनली गो थ्रू द एथिकल, जितने भी एथिकल मेथड्स हैं रिसर्च के उनको फॉलो करना है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना। अदरवाइज अवर रिसर्च प्रोजेक्ट विल नॉट बी अप्रूव फ्रॉम वेरियस एथिकल कमिटीज। दैट यू नो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिव्यू होते हैं, एथिकल रिव्यू होता है, रेगुलेटरी रिव्यू होता है, ठीक है, साइंटिफिक रिव्यू होता है। तो अगर हमारा एथिक्स जो है वो एथिक्स कमेटी से तभी पास होगा जब हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो एथिकल होंगे, साइंटिफिक होंगे। एंड फाइनली आर स्टैंड फॉर रिलीवेंट। अवर रिसर्च क्वेश्चन शुड बी रिलीवेंट। तो फाइनर का मतलब ये हो गया। एफ स्टैंड फॉर फिजिबल, आई इंटरेस्टिंग, एन फॉर नॉवेल, ई फॉर एथिकल एंड आर फॉर रिलीवेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें और क्या क्या चीज देख सकते हैं, उसका एक एक्रोनिम होता है जिसको बोलते हैं पीको, PICO। PICO, पीको। पीको में पी स्टैंड फॉर अवर पॉपुलेशन, हमारी अंडरलाइंग पॉपुलेशन, हम जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं कि वी वांट टू स्टडी ऑन द ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, तो जितने भी चिल्ड्रन हैं अंडर 5 इंडिया में वो क्या हो गए हमारे रिसर्च पॉपुलेशन। देन आई स्टैंड फॉर आवर इंटरवेंशन, हम इसमें क्या इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आई हो गया। देन सी स्टैंड फॉर कंपेरेटर, हम किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं, उस ग्रुप को हम किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। और ओ स्टैंड फॉर अवर आउटकम, हमारा आउटकम क्या होगा। तो दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट पीको। देन थर्ड इम्पोर्टेंट जो एक्रोनिम है उसको बोलते हैं डेप्थ मॉडल। डेप्थ मॉडल में डी स्टैंड फॉर डायग्नोसिस। रिसर्च क्वेश्चन में भी रिलेटेड विथ सम डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी डिजीज है, SLE है, उसकी डायग्नोसिस के लिए हम कोई कौन कौन से टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो वो रिसर्च क्वेश्चन में राइज फ्रॉम सम डायग्नोसिस। देन ई स्टैंड फॉर इटियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल SLE की क्या इटियोलॉजी हो सकती है, लाइक इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो इट रिसर्च क्वेश्चन में राइज फ्रॉम सम इटियोलॉजी। then P stand for prognosis. For example, in case of some cancers, we want to know what is the prognosis of this cancer or what is the prognosis of this disease, what is the 5-year survival rate, what is the 1-year survival rate. So these research questions are related with prognosis. And TH stand for therapy. थेरेपी में हम सपोज दो ड्रग्स हैं उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। सो अवर रिसर्च क्वेश्चन विल बी विच ड्रग इज बेटर, वेदर ए ड्रग इज बेटर और बी ड्रग इज बेटर और बोथ आर इक्वल। सो रिसर्च क्वेश्चन में राइज फ्रॉम द थेरेपी। अब यहाँ पर हम कैन आई प्रोजेक्ट PPT, कैन आई प्रोजेक्ट PPT? ओके, आई एम प्रोजेक्टिंग a PPT. Yes, sir, you can. Yeah. So you can first share your presentation online.
Is my screen visible to you? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you. So identifying the knowledge gap in an area of relevance is the first step to a research question. So kindly bring your presentation in presentation mode. The Okay. slides. Okay. So the depth model of research question, we stands with the diagnosis, etiology, prognosis, and therapy. So the research question may start from the depth model. Then there are another important component is PICO model, in which P stand for population, I stand for intervention, C stand for comparator, and O stand for the outcome. So they should be defined preferably in the measurable terms. Then what is the knowledge gap? Which branch of the depth model? What are the PICO components and how I define them, preferably objective? So these are the various components of the research question. Then coming to the example of the Epstein-Barr virus and SLE. As we all know that SLE is an autoimmune disease, and there may be, it is often associated with the exposure to Epstein-Barr virus. Now, if want to know there is any association between the Epstein-Barr virus and SLE, then we will frame a research question. So our first question will be, what is the knowledge gap? Then the literature says that it is a multifactorial disease which is triggered by a complex interaction between the genetic and environmental factors. The exact cause is unknown. Then Epstein-Barr virus has genetic similarity, antigenic similarity with the human spliceosomes, which is a target for the autoantibodies. Then which branch of depth model? So obviously it is associated with the etiology. Then our determinant or our exposure, our determinant will be the exposure to the Epstein-Barr virus, and our outcome will be the development of the SLE. So here the population will be all the patients which will attend the rheumatology clinic of the AIIMS Bhopal hospital. Our intervention will be exposure to the Epstein virus, which can be detected by the IgG antibody test. Our comparator will be non-SLE patients matched for all the confounding factors with respect to age, gender, and ethnicity. And our outcome will be the development of new onset of active SLE. Finally, our research question will be, among patients attending the rheumatology clinic of AIIMS Bhopal Hospital, do newly diagnosed patients with active SLE demonstrate higher level of positivity for anti-Epstein-Barr virus IgG antibodies compared to their age, gender, and ethnicity matches control? So this is just one example that how research questions are made. Another example we can say, suppose we want to know whether what is the impact of exercise on the diabetes. So we want to frame the research question. So our first step will be the literature search. We will search the literature and we will find what is the effect of exercise on the diabetes. So on searching the literature, suppose our literature shows that exercise will decrease the blood sugar as well as body fat. So we will further raise the question, is diabetes
is exercise can control the blood sugar. So this is also a research question, but it is a very crude. So we want to more specify it. Why we will discuss this research question by our peer group, and we will frame. We will want to further more refine this research question. How we will refine इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको पता करेंगे कि जो ब्लड शुगर है वो किस तरह की है. अब ब्लड शुगर फास्टिंग भी हो सकती है, पोस्ट प्रेंडियल भी हो सकती है और रैंडम ब्लड शुगर भी हो सकती है. तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम किस टाइप की ब्लड शुगर पे इसका इफेक्ट जानना चाह रहे हैं, फास्टिंग पर, पोस्ट प्रेंडियल पर या रैंडम ब्लड शुगर पर. उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर एंड आउटकम. हमारा एक्सपोजर क्या है? एक्सरसाइज है. और हमारा आउटकम क्या है? ब्लड शुगर है. तो ब्लड शुगर फास्टिंग हो गई, रैंडम हो गई, पोस्ट प्रेंडियल हो गई, और हमारा एक्सपोजर जो है वो एक्सरसाइज है. अब एक्सरसाइज को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस तरह की एक्सरसाइज को स्पेसिफाई कर रहे हैं. एक्सरसाइज इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, या साइकिलिंग भी हो सकती है, या जॉगिंग भी हो सकती है. तो हम इसको या एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं. तो हम एक्सरसाइज को डिफाइन ये करेंगे कि रेगुलर 1 आवर ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 1 आवर पर डे. So this is the definition of our exercise or exposure, that regular brisk walking of 1 hour per day. So this will be our exercise and this will be our exposure. So finally we will further हम इसको further refine करेंगे research question को. किस तरह से refine करेंगे कि in patients of type 2 diabetes mellitus, in order to improve the management of type 2 diabetes mellitus, whether 1 hour of brisk walk per day will improve the fasting blood sugar or not. So this will be our complete research question. तो इस सारे अप्रोच होते हैं, जैसे फाइनर मेथड से होता है, दूसरा हमने बताया पीको मेथड होता है, तीसरा डेप्थ मॉडल होता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम रिसर्च क्वेश्चन अपना जनरेट कर सकते हैं. अब रिसर्च क्वेश्चन के जनरेट हमने कर लिया, उसके बाद हमको वी हैव टू फ्रेम आवर ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन आवर रिसर्च क्वेश्चन. कोई भी हम किसी भी जर्नल में अगर हम पब्लिकेशन भेजते हैं तो वी मस्ट हैव वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमारे पास जो है अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उस जर्नल में वो हमारा रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेम आवर ऑब्जेक्टिव. Excuse me, sir. I think your presentation is not moving. It has been stuck on slide number, I don't know. This practice Yes. I shall explain without PPT. Okay, sir. Okay. तो अगर हम किसी भी हमको हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए. एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है? अक्सर जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं व्हाट आर एम्स एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स. तो एम्स का मतलब ये होता है कि हमारा जनरल क्या पर्पस है. एम्स में हम रिलेटेड विद द जनरल पर्पस ऑफ द स्टडी, बट अवर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. साइंटिफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स शुड बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के हम ऑब्जेक्टिव्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो हमारा जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं. सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए एंड इट शुड बी इन द साइंटिफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स. इसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चन अपना बना लिया. उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है. सपोज हम जानना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज का डायबिटीज पे क्या इफेक्ट है. तो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस ये है कि अगर एक्सरसाइज हैज अ गुड इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज, सो दिस विल बी आवर रिसर्च हाइपोथेसिस. तो इसका अपोजिट जो होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं. तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? दैट एक्सरसाइज हैज नो इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज. सो दिस विल बी आवर नल हाइपोथेसिस. अब सवाल ये उठता है कि हम नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं. नल हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं फॉर स्टेटिस्टिकल पर्पस से, क्योंकि हमें किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को या किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम लगाते हैं.
तो उस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को लगाने के लिए जो रिसर्च हाइपोथेसिस का जो अपोजिट हाइपोथेसिस होता है उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, या उसको स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं स्टेटिस्टिकल टेस्ट से। तो जैसे कि कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी अगर जज होता है तो वो एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की तरह होता है, ठीक है। तो जज कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी अक्यूज, किसी भी अक्यूज को हम तब तक प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं करते जब तक कि वो एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं होता। उसी तरह से हम जो है, जब तक हमें एसोसिएशन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू नहीं मिल जाएगा तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं वो टेस्ट करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को। अगर हमारा टेस्ट नल हाइपोथेसिस ये हो गई हमारी कि एक्सरसाइज हैज नो इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज। अब जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर हमारा नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि ये जो सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस आया है, एसोसिएशन आया है बिटवीन द एक्सरसाइज एंड डायबिटीज, इट इज ओनली बाय ए चांस। और अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब कि ये डिफरेंस जो है इट इज नॉट ड्यू टू चांस ओनली, देयर इज सम मेजर एसोसिएशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड डायबिटीज। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू हम अपनी नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एक्सरसाइज एंड डायबिटीज। और अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन द एक्सरसाइज एंड डायबिटीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द नल हाइपोथेसिस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद हम क्योंकि मेरा टॉपिक नल हाइपोथेसिस है और दैट इज रिलेटेड विद स्टैटिस्टिक्स, सो आई वांट टू ब्रीफली डिस्कस अबाउट सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस। तो दो एरर होती है, जो टाइप ऑफ एरर होती है स्टैटिस्टिकल टर्म में दो तरह की होती है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। जो टाइप 1 एरर होती है उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव एरर और अल्फा एरर। और टाइप जो बी एरर होती है दैट इज फॉल्स निगेटिव एरर और बीटा एरर। तो हमारा जो स्टडी का जो टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो डिटरमिन होता है वो अल्फा एरर से या फॉल्स पॉजिटिव एरर से। और जो हमारा स्टडी का पावर होता है वो डिटरमिन होता है बीटा एरर से या फॉल्स निगेटिव एरर से। सो फॉल्स पॉजिटिव एरर में क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है कि हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, जब वो ट्रू होती है। और जो टाइप 2 एरर होती है उसमें हम फेलियर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द our various types of the error. Now we come to the in short about the various, how will you select the statistical test in your, suppose you are doing some thesis or dissertation for your MD and आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया, आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चूज किया। अब वहां पे आपको कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाना है, उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, हमको कुछ सिंपल चीजों के आंसर चाहिए, उसके बाद हम अपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ डेटा हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा है हमारा। अब डेटा जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो क्वांटिटेटिव हो सकता है या तो क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसको हम ऑल्सो क्वांटिटेटिव डेटा को जो है न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। अब जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो दो तरह का हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लाइक जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हाइट है, तो ये कॉन्टिन्यूस टाइप का डेटा होता है। और जो दूसरा तरीका होता है डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ लाइक नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए फैमिली, number of persons attending an OPD, numbers of persons experiencing a headache। तो हमारा जो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूस हो गया या डिस्क्रीट हो गया। और दूसरा तरह का इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा।
कैटेगोरिकल या कैटेगोरिकल का मतलब ये होता है कि क्वालिटेटिव डेटा है। अब क्वालिटेटिव डेटा भी दो तरह का हो सकता है। इट मे बी ऑफ द like nominal data. In nominal data there are some attributes, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। नॉमिनल डेटा का एग्जांपल है लाइक कलर ऑफ आवर आइरिस, हमारे आइरिस का क्या कलर है, तो उसमें सम नेम्स आर असाइन टू इट, लाइक आइरिस में बी ब्लू, आइरिस में बी ब्राउन, iris may be any other color. So color of iris an example of the nominal data. Then second important type का जो डेटा होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या होता है कि हम हेयर द डेटा आर अरेंज सम इन मीनिंगफुल ऑर्डर, हम एक मीनिंगफुल ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। लाइक स्टेजेस ऑफ द कैंसर, लाइक हमें स्टेजेस ऑफ कैंसर में पता चल जाता है कि स्टेज 1 में प्रोग्नोसिस कैसी है, स्टेज 2 में प्रोग्नोसिस कैसी है, स्टेज 3 में कैसी है, स्टेज 4 में प्रोग्नोसिस कैसी है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनल डेटा। यहाँ पे डेटा को हम किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, तो आप शर्ट का साइज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो शर्ट साइज में बी स्मॉल, इट में बी मीडियम, इट में बी लार्ज, इट में बी एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहाँ पर हम एक मीनिंगफुल ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह के डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। तो ये तो बात हो गई डेटा की। अब डेटा के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है? हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहां पर जिसके मीन मीडियन मोड जो होते हैं तीनों बराबर होते हैं और जो एक नॉर्मल बेल शेप सिमेट्रिकल कर्व्स देता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे वो जितने भी बॉडीली पैरामीटर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, हाइट है, तो ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमको एक स्मूथ बेल शेप कर्व मिलता है, स्मूथ बेल शेप कर्व मिलता है और +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 68% वैल्यूज को कवर करता है, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 95% वैल्यूज को कवर करता है और +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 99% वैल्यूज को कवर करता है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो इस तरह को हमको स्मूथ बेल शेप कर्व मिलता है, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नॉर्मल है। अगर हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तभी हम उसमें स्टेटिस्टिकल टेस्ट को लगा सकते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट। अब टेस्ट भी जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं तब लगाते हैं अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हम तब लगाते हैं अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, स्क्यूड है, तो उस कंडीशन में हम जो टेस्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है लाइक काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। तो ये सारे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। लेकिन किसी भी रिसर्च में हमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पैरामीट्रिक टेस्ट बिकॉज दीज टेस्ट आर मोर रोबस्ट। तो हमें हमेशा अपना ऐसा डेटा अपना लेना है कि हमारा जो डेटा है, अवर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस कंडीशन में हमको जो है पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। अब पैरामीट्रिक, सपोज हमारा डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम उसको मैथमेटिकली वी कैन आल्सो कन्वर्ट दैट डेटा इनटू नॉन नॉर्मल डेटा इनटू नॉर्मल डेटा विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। ये आपको आगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई जाएंगी। अब नॉन पैरामीट्रिक, अब ये हो गया टाइप ऑफ डेटा हो गया, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ डेटा सेट्स। नंबर ऑफ डेटा सेट्स का एग्जांपल मतलब ये होता है कि कितने हमारे पास डेटा सेट्स हैं। अगर हमारे पास अप टू टू डेटा सेट्स हैं या दो ग्रुप हैं तो हम उसमें पेयर टी टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट लगाएंगे अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं और
n इज लेस देन 30 तो वहां पर टी टेस्ट लगाते हैं, और अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो हम वहां पर एनोवा टेस्ट लगाते हैं। तो ये सारे जो टी टेस्ट हो गए, एनोवा हो गए, ये पैरामीट्रिक के लिए लगते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप, अब देयर यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सपोज आप you are evaluating 4 drugs A, B, C, D. So there are more than 2 groups, then ANOVA will be followed. Then type of analysis. Statistics में 3 तरह की analysis होती है. One is comparative analysis, where will you compare means, median, like with the help of the t-test or ANOVA test. So this is known as comparative analysis. There may be some analysis which is known as correlation analysis. Suppose if you want to know the correlation between the body weight and blood pressure, then correlation analysis, correlation test will be used. And there another type of relation analysis is रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन का मतलब, रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एक दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्सन को हमने ड्रग इंजेक्ट किया और उसका हमने एक घंटे पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिया और उन दोनों के बीच प्लॉट किया, तो एक्स एक्सिस पे हमने ड्रग कंसंट्रेशन लिया और वाई एक्सिस पे हमने टाइम लिया, तो एक जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलते हैं, जो ग्राफ फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पर बता सकते हैं कि इस टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो एक पैरामीटर अगर हमको पता है तो दूसरा पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर पता है तो हम डिपेंडेंट पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन में हम जो टेस्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो 3 तरह की एनालिसिस हो गई, कंपैरेटिव एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है, जो स्टडी डिजाइन होता है। जैसे कि आपने स्टडी डिजाइन में पढ़ा होगा, केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं, कोहॉर्ट स्टडीज होती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। तो लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स में जो होती है वो 2 ही तरह की स्टडी डिजाइन होती है। एक पहली जो डिजाइन होती है उसको बोलते हैं मैच्ड और पेयर्ड, और दूसरा होता है अनमैच्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड का मतलब क्या होता है कि द सेम ग्रुप एक्ट्स ऑन कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 लोगों को एक ड्रग दिया और उसके पहले ड्रग लेने से पहले हमने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और ड्रग लेने के बाद उनका ब्लड प्रेशर देखना है, तो फॉर एवरी इंडिविजुअल वी विल गेट 2 वैल्यूज, वन इज प्री टेस्ट वैल्यू, सेकंड इज पोस्ट टेस्ट वैल्यू। तो इन 2 टेस्ट को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे या मैच्ड एनालिसिस लगाएंगे। लेकिन अगर 2 हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, सपोज 2 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 10-10 लोग हैं, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं और हमने हर दोनों ग्रुप का मीन ब्लड प्रेशर निकाल लिया, तो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को ले रहे हैं, तो वहां पे हमें अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे, बिकॉज बोथ ग्रुप आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बोथ ग्रुप आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सो अगर हम उन दो ग्रुप में ब्लड प्रेशर चेक करना होगा तो वहां पे हम अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे। So this is about unpaired t-test. So these are the various important parameters on which we can choose the statistical test. और important इसमें सैम्पल साइज कैलकुलेशन पे अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं कि हाउ विल वी कैलकुलेट द सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज कैलकुलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टडी पावर, क्या है आपकी पावर, कितना रखना चाहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, स्टडी डिजाइन क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जो होते हैं, स्टडी डिजाइन क्या है, टाइप ऑफ एनालिसिस क्या है, पावर क्या है, और आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो इन सारे बेसिस पे हम जो है सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है अपने थीसिस में कि हम पी वैल्यू को लें या कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल को लें। Nowadays ideally you should take both p value as well as confidence level, confidence interval. Nowadays अगर ऐसा है, p वैल्यू जो होती है, p वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है तो इसका मतलब हम बोलते हैं उसको सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 है तो हम उसको एग्जैक्टली उस स्टडी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी शुड चेक द पावर ऑफ द स्टडी। सपोज इफ द पावर इज वेरी लेस, सो वी कैन से द स्टडी पावर इज वेरी लेस, so that we cannot find the exact association. So confidence in any thesis we should use both p value as well as confidence interval, क्योंकि confidence interval की importance ये है कि इससे हमें clinical importance पता चलती है, या इसको हम कह सकते हैं कि इससे हमें precision पता चल सकता है।
सपोज आपको मार्केट में जाना है कार खरीदने और आप पूछते हैं कि जो आल्टो है उसका कॉस्ट कितना है, तो एक पर्सन आपको सामने वाले ने बताया कि 4 से 5 लाख के बीच में मिल जाएगी, तो उसका प्रेसिजन ज्यादा होगा, या एक सेकंड पर्सन ने बताया कि नहीं ये 4,10,000 से 4,30,000 के बीच कॉस्ट है, तो जो सेकंड जो 4,10,000 से 4,30,000 का बताया दैट इज मोर प्रेसाइज आंसर। तो इसी तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना कम होगा हमें उतना ज्यादा प्रेसाइज वैल्यू मिलेगी, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना ज्यादा होगा उतना उस चीज की प्रेसिजन कम होगी। तो आई होप I have answered your queries. If you have any query, you can ask me. If you have any query or doubt, you may ask. Thank you, sir. Does anybody have any questions? Thank you, sir, for explaining the statistical terminologies. I also got to understand the regression analysis completely. Otherwise, earlier I was having some kind of doubt, but now it has been cleared. Thank you for that, sir. And thank you for joining us. Thank you so much. If students are not, they must have got at least a gist about what they are going to do in their first year in research methodology and biostatistics. Yes, I hope this session will be useful to all PG students. Yes, sir. I hope so too. So with coming to the end of the session, I am thankful to you that you gave us your precious time and came here to give the students a fresh mindset and insight about the research and biostats that they are going to see in their research programs. And also, I think they have understood about how they are going to select a research topic. This is the main problem. Students usually, even as a fresher, we were also having some trouble regarding that. What topic should we select? Research question or whatever in any field. So I think they must have got fairly a gist that how they are going to at least select a research topic for their respective departments. Thank you, sir, once again. Now I would like to call on stage Dr. Nafees, sir, to give concluding remarks and end this session. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रिसर्च पे एक बहुत ही एलाबोरेट लेक्चर दिया, और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही नहीं बल्कि फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सभी को फायदा होगा, क्योंकि आपने रिसर्च में आने वाले जो भी मुश्किलात हैं या जो भी आपको आगे करना है 3 साल में, उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे बताया है। यानी रिसर्च स्टेटिस्टिक्स से लेकर के रिसर्च डिज़ाइन और फिर उससे पहले कि आप रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करेंगे, इन सारी चीज़ों को कवर किया है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये थीसिस लिखने में आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग अ फ्रेशर आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी या आपको वो चीज़ें नहीं पाला पड़ा होगा कि टी टेस्ट अभी हमको कहाँ यूज़ करना है या पीरियड अनपीरियड की जो बात कर रहे थे सर। लेकिन यकीनन सी बात है क्योंकि हमारे पास फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हैं और फ्रेशर्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है फाइनल ईयर वालों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि उनको ये चीज़ें अभी दरपेश होंगी। तो मैं बहरहाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही एक्सटेंसिव लेक्चर दिया है, और मुझे लगता है कि रिसर्च में जितनी चीज़ें हो सकती थी आपने सभी को समझ दिया है अपने इस लेक्चर में। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।